سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مسافروں پر کراچی ایئرپورٹ سے سفری پابندی سے خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے امیگریشن کراچی نے گمراہ کن خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان ایف آئی اے نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر غلط اور بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پنجاب سمیت تمام ملک کے شہری کراچی ایئرپورٹ سے سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جس کے حوالے سے اب تردید جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے ایوییشن حکام کی۔ ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر جو چلنے والی خبریں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے مسافروں پر کراچی ایئرپورٹ سے سفری پابندی سے متعلق خبریں، ایف آئی اے امیگریشن کراچی نے گمراہ کن خبروں کی تردید کی ہے۔ ترجمان ایف آئی اے نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر غلط اور بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پنجاب سمیت تمام ملک کے شہری کراچی ایئرپورٹ سے سفر کر سکتے ہیں۔ ایف آئی اے امیگریشن کراچی کی جانب سے وضاحت جاری کر دی گئی ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر یہ غلط اور بے بنیاد تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے سفر کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے امیگریشن کراچی نے اس خبر کی سختی سے تردید کر دی، واضح کیا ہے کہ ایسی کوئی پابندی موجود نہیں ہے۔ پنجاب سمیت ملک کے تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے مسافر اور خاندان کراچی ایئرپورٹ سے بلا کسی رکاوٹ کے سفر کر سکتے ہیں۔ ایف آئی اے امیگریشن کے افسران تمام مسافروں کو مکمل پیشہ ورانہ انداز، شائستگی اور قانون کے مطابق سہولت فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ مزید یہ بھی وضاحت کی گئی کہ انسانی سمگلنگ اور ایجنٹ مافیا کی سرگرمیوں میں اضافے کے باعث امیگریشن چیکنگ اور پروفائلنگ کے عمل کو صرف مشتبہ یا پہلی بار سفر کرنے والے افراد کے لیے سخت کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو انسانی سمگلرز کے دھوکے سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ اقدامات صرف عوامی تحفظ اور قومی ذمہ داری کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان میں کسی بھی قسم کی صوبائی یا علاقائی تفریق شامل نہیں ہے۔ کہ الیکٹرک نے ملٹی ایئر ٹیرف کے نظر ثانی شدہ فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی۔ فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ اور نیپرا کے اپیلیٹ ٹریبیونل میں درخواست دائر کر دی۔ کہ الیکٹرک نے اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مکتوب بھی جاری کر دیا ہے کہ الیکٹرک نے ملٹی ایئر ٹیرف نے نظر ثانی شدہ فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ اور نیپرا کے اپیلیٹ ٹریبیونل میں درخواستیں دائر کر دیں۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے کہ الیکٹرک نے ملٹی ایئر ٹیرف کے نظر ثانی شدہ فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ الیکٹرک نے ملٹی ایئر ٹیرف کے نظر ثانی شدہ فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ اور نیپرا کے اپیلیٹ ٹریبیونل میں درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ کہ الیکٹرک نے اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خط بھیج دیا ہے جس میں تفصیلات میں کہا گیا کہ الیکٹرک نے سندھ ہائی کورٹ میں 5 متفرق درخواستیں دائر کی ہیں۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے 4 نومبر کو کہ الیکٹرک کی درخواستوں پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ اس سے قبل کہ الیکٹرک نے ملٹی ایئر ٹیرف کی نظر ثانی شدہ فیصلے کے خلاف نیپرا کے اپیلیٹ ٹریبیونل میں درخواست دی تھی۔ نیپرا قوانین کی ڈگری 12G کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی اور نیپرا کے اپیلیٹ ٹریبیونل اس وقت غیر فعال ہے، اس لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کیمبرج میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب، وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کیمبرج میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب، وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سید زبیر راشد ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، دیکھیے کیمبرج امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد نے ہوٹل میں کیا گیا۔ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کیمبرج امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم سید سردار شاہ کا کہنا تھا کہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی صورت میں لیڈر پیدا ہو چکے ہیں جو اب کامیابی سمیٹ رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے سرکاری اسکول میں او لیول اور اے لیول کلاسز شروع کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ پائلٹ پروگرام کے تحت کچھ سرکاری اسکول میں کیمبرج کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ علم کے حصول میں
तब्कानी पर ख़त्म करना हुकूमत सिंध की तरजीह है। वज़ीर तालीम ने कहा कि होनहार तलबा का ताल्लुक किसी भी तबके से हो सकता है, ज़रूरी है कि उनके लिए मौका पैदा किया जाए। हुकूमत सिंध मालूमी मेयार की तालीम आम तलबा तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर तालीम ने असातिज़ा, वालिदैन और तालीमी इदारे की किरदार को सराहा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब असम्बली के वफ्द की सिंध असम्बली आमद। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह और डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने पंजाब असम्बली के वफ्द का खैर मकदम किया। स्पीकर ने वफ्द को सिंध असम्बली के कानून साजी के अमल और 2013 के चाइल्ड मैरिज एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बात करेंगे आज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए पंजाब असम्बली का एक वफ्द आया हुआ है, उसने आज दौरा किया है सिंध असम्बली का, और सिंध असम्बली पहुंचने पर स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह और डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने इनका इस्तकबाल किया। इस वक्त की क़यादत जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब के जो चेयरमैन हैं सैयद अली हैदर गिलानी कर रहे थे, और इसमें ख़ासतौर पर सिंध में इदारा जाती इस्लाहत, कानूनी नुकात और चाइल्ड मैरिज के हवाले से बातें हुई हैं, और आखिर में पंजाब असम्बली के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द को जो है सिंधी टोपी और अजरके पहनाई गई और इनका खूबसूरत इस्तकबाल किया गया, और वफ़द ने इस पर स्पीकर सिंध असम्बली का शुक्रिया भी अदा किया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सुई गैस की जानिब से रोड कटिंग की गई, सड़कों की बहाली और दीगर उमूर मुशावरत की गई। आपको बताएं, कमिश्नर कराची की शहर की तबाह सड़कों पर मेयारी काम करवाने की हिदायत। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। महकमे सुई गैस की जानिब से रोड कटिंग की गई और सड़कों की बहाली और दीगर उमूर पर मुशावरत की गई। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद अली शाह डिप्टी कमिश्नर्स इजलास में शरीक हुए। इजलास में तमाम अजला के म्यूनसिपल कमिश्नर्स ने भी शिरकत की। रोड कटिंग की जद में आने वाली सड़कों की फौरी तौर पर बहाली का फैसला किया गया। कमिश्नर कराची ने शहर की तबाह सड़कों पर मेयारी काम करवाने की हिदायत की है। आपको बताएं कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। शोएब मुख्तार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें सुई गैस की जानिब से रोड कटिंग की गई, सड़कों की बहाली व दीगर उमूर पर जो है मुशावरत की गई है। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद अली शाह, डिप्टी कमिश्नर समेत म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान और तमाम अजला के म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो मौजूद थे। रोड कटिंग की जद में आने वाली सड़कों की जो है वो फौरी तौर पर बहाली का फैसला जो है वो किया गया है, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से ये कहा गया है कि रोड कटिंग के बाद जो सड़कें इस वक्त बहाली का शिकार हैं उन पर जो है फौरी तौर पर मरम्मती काम जो है वो शुरू किया जाए। काम के मयार पर जो है किसी भी किस्म का समझौता ना किया जाए, और जल्द अज जल्द जिन सड़कों की जिन अजला में जो है रोड कटिंग की गई है उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। तमाम तर उनकी जानिब से टाउन इंतजामिया म्यूनसिपल कमिश्नर्स को हिदायत दी गई हैं कि वो सड़कों के मयार पर जो है वो किसी भी किस्म का समझौता ना करें और मयारी सड़क जो है जल्द अज जल्द तामीर कराएं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में शहीद अल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी जामशोरो की वाइस चांसलर अराबीला भुट्टो की तकर्रुरी को चैलेंज कर दिया गया। अली असगर की दरख्वास्त पर अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 25 नवंबर तक का जवाब तलब किया है। HEC को सिंध को भी फरीक बनाने की हिदायत की गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मौजूदा वाइस चांसलर शहीद अल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी अराबीला भुट्टो की तैनाती कवायद के खिलाफ है। उनका तदरीसी और इंतजामी तजर्बा मतलूबा मेयार के मुताबिक नहीं है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एक वक्त में वो 2 चार्ज संभाल रही है। सूफी यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज भी रखती हैं। नाजरीन, शहर कायद में ई चालान का निज़ाम बेकाबू, शहरी परेशान। अदालत जाने का ऐलान कर दिया। शहरी हकीमुल्ला को एक दिन में 4 चालान और फिर एक और चालान मौसूल हो गया।
5 चालान मिलने पर शहरी परेशान हो गया। मुतासरा शहरी हकीमुल्लाह ने कहा कि जब मुझे चालान मिला तो मुझे लगा गलती से ज़्यादा कॉपी आ गई है, लेकिन चेक करने पर मालूम हुआ कि सबका टिकट नंबर अलग है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने गलती तस्लीम करते हुए ताउन की यकीन दहानी करा दी। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में ई चालान का निज़ाम में खामियां सामने आने लगी। बल्दिया टाउन के रिहायशी शहरी को 5 ई चालान भेज दिए गए। शहरी हकीमुल्लाह ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। शहरी हकीमुल्लाह को एक दिन में 4 चालान और फिर एक और चालान मौसूल हुआ। 5 चालान 30 अक्टूबर को किए गए। 3 चालान एक ही मकाम पर हुए जबकि 2 दूसरे मकाम पर हुए। पहले 3 चालान 12:03 पर माड़ीपुर में हुए। चौथा और 5वां चालान 12:13 पर हसन स्क्वायर पर हुआ। तमाम चालान सीट बेल्ट न पहनने पर किए गए। 50,000 के चालान मौसूल होने पर शहरी हकीमुल्लाह का कहना था कि मेरा भाई एयरपोर्ट जा रहा था, इस वक्त ये चालान हुए हैं। मुझे पहले 4 चालान मौसूल हुए, फिर कल एक और चालान मिला। जब मुझे चालान मिला तो मुझे लगा गलती से ज़्यादा कॉपियाँ आ गई हैं, लेकिन चेक करने पर मालूम हुआ कि सबका टिकट नंबर अलग है। एयरपोर्ट जा रहे थे तो लियारी एक्सप्रेस वे पे जिस तरह आप इंटर होते हैं 12:03 पे 3 चालान हुए। ये आपके सामने पड़े 3 चालान 12:03 पे यहाँ पे लियारी एक्सप्रेस पे हुए और 2 चालान 12:13 पे हसन स्क्वायर पे उतरते वक्त हुए। एक ही टाइमिंग और एक ही गाड़ी के और एक ही उसके 5 चालान आए हुए। तो लेकिन जब उसको चेक किया तो उसके टोकन वगैरह थे तो वो सब कुछ चेंज है, तो 5 चालान हुए एक ही वक्त के। डीएसपी ट्रैफिक एडमिन कराची काशिफ नदीम का कहना है कि प्रिंटिंग में गलती की वजह से ये हुआ। शहरी सहूलत सेंटर जाए तो मसला हल हो जाएगा। देखिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर सारे अपडेट हुए हैं। ये जिन साहब को 4 चालान चले गए थे वो प्रिंटिंग एरर की वजह से गए थे, उनसे राब्ता भी हो गया हुआ था। उनको बताया गया कि आप जाएं ये अपना सहूलत सेंटर के अंदर, वो वेव हो जाएंगे वहाँ से, और एक चालान उनका रह जाएगा, वो तो पहला आम जो है उसके अंदर आप लिख के दे देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे सारा। तो ये निज़ाम बिल्कुल शफाफ है। छोटी मोटी गलतियाँ कहीं ना कहीं शुरू में आ रही हैं। मुतासरा शहरी का मजीद कहना था कि अगर ट्रैफिक पुलिस से मसला हल नहीं हुआ तो अदालत जाऊंगा। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। ई चालान का मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि हादसात को रोकना है। शजील इनाम मेमन ने वजाहत कर दी। सीनियर वजीर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बेहतर फैसला करेगी। सिंध के काश्तकारों को आज से खाद के लिए हुकूमत की तरफ से इमदादी रकम मिलेगी। आजिज जमाली की रिपोर्ट। ई चालान से सिग्नल्स पर ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी। शर्जील इनाम मेमन ने ई चालान को हादसात की रोकथाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर वजीर का कहना था कि कुछ सियासी जमातों को मुखालिफत बराए मुखालिफत करनी है, वो न खुद काम करते हैं न किसी को काम करने देते हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि सिग्नल तोड़ना और वन वे तोड़ना खतरनाक अमल है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 2 खतरनाक होती हैं ट्रैफिक कवानीन में कैटेगरी। एक होती है जो रेड लाइट होती है उसको वायलेट करना। दूसरी उससे खतरनाक चीज़ होती है वो होती है वन वे पे ड्राइव करना। हमेशा कड़वे डिसीजंस जो होते हैं, थोड़े तकलीफ दे ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें हम इंसानी जानों, कीमती इंसानी जानों की को ज़्यादा से बचा सकते हैं। कुछ सियासी पार्टियां जिनका हमेशा मकसद जो है वो कि जी ना काम करना ना करने देना है। सवालात के जवाब में कहा 1973 का आइन पीपल्स पार्टी ने बनाया, 18वीं तरमीम भी पीपल्स पार्टी ने दी है। अवाम की बेहतरी के लिए आइनी तरामीम होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास में 27वीं तरमीम के हवाले से जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। आइन पाकिस्तान बना 1973 में। 1973 में कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों से पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िका आइन 1973 का मिला। उसके बाद आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं। हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। तो ज़ाहिर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध के 4,20,000 किसानों को खाद के लिए फी एकड़ 14,000 रुपए आज से मिलना शुरू हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि काश्तकार ज्यादा से ज्यादा गंदम काश्त करें ताकि मुल्क में गंदम की किल्लत ना हो। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ आजिज जमाली, कराची। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 1703 पॉइंट्स की कमी से 1,59,578 की सतह पर बंद हुआ।
काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात, मार्केट पर मंदी के बादल, 100 इंडेक्स मंदी का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुध को भी मंदी का रुझान गालिब रहा। कारोबार का अख्ताम 1703 पॉइंट्स कमी से 1,59,578 की सतह पर हुआ। कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,62,052 और कम तरीन सतह 1,59,216 रही। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की जानिब से मार्केट में शेयर्स की फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। सरमायाकार मुनाफे को समेटने पर तरजीह दे रहे हैं। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग स्पेल है। आज भी मार्केट जो है ना काफ़ी रेंज जो है ना वो बाउंस सिचुएशन में काफ़ी वॉलेटाइल है। ऊपर लेवल पे आप देख रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग आ रही है और रीज़न थोड़ा सा ये है कि ऊपर आने के बाद जो इन्वेस्टर हैं या फंड्स हैं या फॉरेनर्स हैं, वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो प्रॉफिट रियलाइज़ करेंगे। यही वजह है कि मार्केट जो लेवल्स हैं उसको सस्टेन नहीं कर रही। जी, इसकी बहुत सी वजूहत है। जैसे सैलाब है, उससे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, स्टेट बैंक ने अपना जो पॉलिसी रेट था उसको चेंज नहीं किया, वो भी सस्टेन रहा, ये भी एक वजह है। दूसरी वजह ये कि मार्केट में जो सरमायाकार है इस वजह से थोड़े से मुहतात भी हो गए, पीछे चले गए। चूँकि प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी नहीं है, इतनी फ़ौरन नहीं आ रही जितनी ज़रूरत है। इसकी वजह से भी मार्केट थोड़ी सी मंदी नज़र आ रही है। अपना माहिरीन का कहना है कि मार्केट में वक्ती मंदी के बावजूद तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौके अब भी मौजूद हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। साल का सबसे बड़ा सुपरमून आसमान पर रोशन। सुपरमून जमीन से 2,21,817 मील के फासले पर है। आज चांद मामूल से 9.7% बड़ा दिखाई दे रहा है। सुपरमून की चमक 16% ज़्यादा है। आपको बताते चलें कि आज ये साल का दूसरा सुपरमून है। अक्टूबर में पहला सुपरमून था रवा साल का और दिसंबर में तीसरा और आखिरी सुपरमून होगा। ये दूसरा सुपरमून है जो हम देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। सबसे बड़ा सुपरमून, सबसे रोशन सुपरमून जो है वो हम देख रहे हैं। सुपरमून ज़मीन से 2,21,817 मील के फासले पर है। कम तरीन फासला है ज़मीन से ये चांद का। बात करेंगे शायान अली से। शायान, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, आज जो है साल का दूसरा सुपर मून है, जबकि इससे कबल जो है एक गुज़िश्ता माह 5 तारीख को जो है सुपर मून दिखाया गया था, जबकि आज भी सुपर मून है जो कि 6:19 तारीख को जो है शुरू हुआ है। अगर मैं बात करूं तो सुपर मून जो है इस वक्त होता है जब ज़मीन के जो है सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है, जिसके तहत जो है वो बड़ा लगता है और इसके साथ साथ जो उसकी रोशनी में भी इजाफा होता है, जो कि देखने में भी बड़ा खूबसूरत होता है। और शहरी भी जो हम देखते हैं कि काफ़ी देर से जो है इंतज़ार कर रहे थे कि सुपर मून का वक्त है, उसके बाद जो वो नज़ारे देख सकें। बताया जा रहा है जो माहिरीन है उनकी जानिब से कि इसका नाम जो है वो ब्योर सुपर मून बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि ये आज जो है 2,21,817 मील के फासले पर है, जबकि इसकी जानिब से ये भी बताया गया है कि आज जो है चांद मामूल से ज़्यादा जो है 9.7% जो है बड़ा दिखाई दे रहा है। सुपर मून जो वो बताया जा रहा है कि ये 3 रवां साल दिखाई देंगे, जिसमें जो है गुज़िश्ता माह एक दिखाया गया था और आज भी इस वक्त जो वो दिखाया जा रहे हैं मंजर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो करीब से दिखा दे, थोड़ा सा जूम कर दे, ताकि सिटी 21 के जो देखने वाले हैं वो देख सके कि सुपर मून की खूबसूरती किस तरह है और किस तरह जो है वो जब इंतज़ार कर रहे थे उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। तकरीबन 6:19 पर जो है उरूज पर आया। उसके बाद जो है अब भी ये जारी और चंद घंटे जो है इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। सुपर मून के जो मनाज़िर है वो इसी तरह देखे जा सकते हैं। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आज चांद जो है मामूल से तकरीबन 9.7% बड़ा है, जबकि सुपर मून की चमक जो है 16% ज़्यादा बताई जा रही है। ये इस साल होने वाला जो है सुपर मून में दूसरे नंबर पे, जबकि अगला जो है 5 तारीख को देखा जाएगा, जो कि दिसंबर के 5 तारीख को देखा जाएगा। जबकि कहा जा रहा है कि अगले सुपर मून का नज़ारा भी जो है इसी तरह खूबसूरत और रोशनास होगा। शहरियों को जो आज के सुपर मून का इंतज़ार था, सुबह से जो वो कहा जा रहा था कि ये सुपर मून के जो मनाज़र देखने के लिए इंतज़ार थे, जो कि अभी सिटी 21 के जो मनाज़र में देख सकते हैं कि किस तरह सुपर मून जो है खूबसूरत भी और बड़ा भी और ज़मीन से करीब हो चुका है। जी शायान, ये बताइएगा कि आया कि सिर्फ ये नज़ारा ही है या खूबसूरती भी है ही है, या ज़मीन पर इसके कुछ असरात भी होते हैं? देखिए, माहिरीन की जानिब से कहा जाता है कि ये कोई ख़तरनाक तो नहीं होता, लेकिन इसका जो ये जैसे ज़मीन के करीब होता है तो एक जो मनाजिर होते हैं वो खूबसूरत भी होते हैं, उसके साथ साथ जो ये साइज़ में बहुत बड़ा नज़र आता है, जिसके तहत जो है वो जिस तरह भी बता रहे हैं कि तकरीबन जो है 16% जो है वो ये रोशनास भी है और 7 जो है समथिंग जो है वो ये बड़ा भी दिख रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो इसकी अगर मैं बताऊँ कि 2 लाख से ज़्यादा जो है मील ये दूरी में बताया जा रहा है, मतलब कि इसकी दूरी थोड़ी सी कम होती है, जिसके तहत जो ये
साइज़ में भी बड़ा नज़र आता है और इसकी जो गोलाई होती है मुकम्मल तौर पे ये गोल होता है, फिर जो इसकी शाइनिंग होती है वो नज़र आती है, जिसके तहत जो है माहिरीन की जानिब से कहा जाता है कि जो अगर शहरी हैं वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। ना सिर्फ ये कराची, जबकि कराची के अलावा दीगर शहरों से भी देखा जा सकता है और दीगर ममालिक में भी जो है इसी तरह वक्फे वक्फे से देखा जाता है। और इस साल जो है ये कराची से जो है हम देख सकते हैं कि रवां साल का ये दूसरा सुपर मून है। गुज़िश्ता माह 5 तारीख को देखा गया था, फिर आज नवंबर की 5 तारीख को जो है ये देखा जा रहा है, जबकि फिर अगले दिसंबर को भी जो है ये देखा जाएगा। और ये सुपर मून जो है रवां साल के 3 सुपर मूनों के जो कि नाजरीन देख सकते हैं, इनकी खूबसूरती भी देख सकते हैं। कुछ लोग जो है तस्वीर और फिर स्टोरीज़ वगैरह सोशल अकाउंट्स में भी अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इस वक्त सिटी 21 के मनाज़र में कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार फिर से वो जूम करके दिखा दे, ताकि जो सिटी 21 के देखने वाले हैं, जिनके इंतज़ार था सुपर मून का, वो करीब से देख सकें कि किस तरह जो इसकी खूबसूरती है। और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जो है वो करीब करके और डिफोकस करें, ताकि जो है वो देख सकें कि इसकी जो शाइनिंग है और इसके बीच में जो एक शेप आता है, जो कि वैसे उमूमन हमें नज़र नहीं आता, लेकिन सुपर मून जब होता है, इनकी तारीखें होती हैं, उस हिसाब से जो ये इनकी गोलाई भी मुकम्मल होती है और इसके साथ साथ जो है इनके अंदर की जो शेप होता है वो भी नज़र आ रहा होता है और इसकी शाइनिंग होती है, जो कि बड़ा खूबसूरत होता है। और तस्वीर भी बनाई जाती है, वीडियोज़ भी बनाई जाती हैं और ख़ुद भी जो है देखा जाता है, अपने साथ भी तस्वीर ली जाती हैं और इनके मनाजिर जो है वो खूबसूरत नज़र आते हैं स्क्रीन्स में भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। रफीक मोड़ के करीब पुलिस एहलकार की ट्रक ड्राइवर से रिश्वत वसूली का मामला। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया। फौरी तौर पर डीएसपी ट्रैफिक नॉर्थ नाज़िमाबाद को मुअत्तल कर दिया। बात करेंगे मुबशिर हुसैन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि यूसी मोड़ के करीब जिला बस्ती का ये मकाम है, जहां एडिशनल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद एडिशनल आईजी कराची हैं जावेद आलम ओढो, उन्होंने इस वीडियो का नोटिस लिया है और फौरी तौर पर डीएसपी ट्रैफिक हैं जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के, उनको मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने तमाम तर वाक़ये के शफाफ गैर जानबदार तहकीकात का हुक्म दिया है। मताई तमलीको और गफलत या बदसलूकी जो की गई है मुबीना तौर पर ट्रक ड्राइवर के साथ और मुलव्विस अफसर और एहलकार जो है वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। कराची पुलिस जावेद आलम ओढो का मजीद कहना है कि ये जो गफलत बरती है अफसरान और डीएसपी नॉर्थ नाज़िमाबाद के खिलाफ तहकीकात होगी और आइंदा रोज भी अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, इख्तियारात से तजावुज किया, तो एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो है वो सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और उसके खिलाफ जो है उसके मुताबिक जो है वो सजा दी जाएगी। मुबशिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। कातिल मच्छर के वार जारी। सिंध भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1130 अफराद डेंगू का शिकार। कराची डिवीजन में 527 मुस्बत केसेस की तस्दीक हो गई है। डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। सिंध भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1130 अफराद शिकार हो गए हैं। शयान अली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, महकमा सेहत सिंध ने जो है सूबे भर में डेंगू के मुतल्लिका जो वो केसेस से मुतल्लिक जो है ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। सिंध भर में जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है मजमूई तौर पर डेंगू के 5511 टेस्ट किए गए, जिनमें से जो 1130 केसेस जो है मुस्बत आए हैं। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक कराची डिवीजन में सिर्फ जो है वो तकरीबन 3937 टेस्ट किए गए, जिनमें से जो 527 जो है वो मुस्बत आए हैं। इसी तरह अगर मैं हैदराबाद शहर की बात करूं तो हैदराबाद डिवीजन में जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 1574 टेस्ट किए गए, जिनमें से जो है 603 केसेस जो मुस्बत आए और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में 129 नए केसेस दाखिल हुए हैं तर्जुमान के मुताबिक। इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी बताया जाए कि प्राइवेट अस्पतालों में जो है 126 नए मरीज दाखिल हुए हैं। सेक्रेटरी रेहान बलोच की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में जो वो 96 मरीज, जबकि प्राइवेट अस्पतालों से जो है 111 मरीज जो है सेहतियाब होकर घर भी जा चुके हैं, जिनका इलाज किया गया था अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान। और जबकि इसी के साथ साथ ये भी बताना चलूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो सूबे भर से एक हलाकत की रिपोर्ट हुई है, जो कि आज 24 घंटों के दौरान जो बताया गया है। इसके साथ साथ ये भी बता चलूँ कि इस वक्त जो है सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद जो है 251 है। प्राइवेट अस्पतालों में जो दाखिल मरीजों की तादाद जो है 264 बताई गई है। सेक्रेटरी रेहान बलोच की जानिब से कहा जा रहा है कि कराची के सरकारी अस्पतालों में जो डेंगू के मरीजों के लिए 256 बेड जो है मुख्तस किए गए, जबकि हैदराबाद में सिर्फ 165 और अंदरून से तमाम तर शहरों में जो 558 जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि सूबे भर में जो है डेंगू के मरीजों के लिए जो है 979 बेड जो है मुख्तस किए गए हैं।
जिनकी जानिब से कहा गया है कि कराची के प्राइवेट अस्पतालों में जो है डेंगू के मरीजों के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट